सौने राम कबीर। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। ओ दीन दुखियों के दामन को भर देना, गुरु का काम है। ओ लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को इस मालिक ने संवारा है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को इस मालिक ने संवारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद कर। हो क्या सोचता है अनमोल जीवन को, ना तू बर्बाद कर। हो सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास में किनारा है। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास में किनारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, कौन है तेरा क्या साथ जाएगा, गुरु का ध्यान कर। हो व्यर्थ है काया, धोखे की है माया, गुरु से पहचान कर। हो बनवारी नादान, बनवारी नादान, तूने गुरु को क्यों बिसारा है। बनवारी नादान, बनवारी नादान, तूने गुरु को क्यों बिसारा है। ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम। राम कबीर। राम कबीर। श्री राम कबीर भक्त समाज ऑफ સાઉથર્ન કેલિફોર્નિયા તરફથી નૈનાબેન તમારા સુંદર અવાજમાં આજે ગીત સંભળાવ્યું એ બદલ ઘણો ઘણો આભાર. નૈનાબેન સંજયભાઈ ભક્ત, કોરોના, કેલિફોર્નિયા અને મૂળ ઓરણા. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. અને આ રીતે તમે અમારી સુવા બહુ સુશોભિત કરતા રહેજો. થેન્ક યુ. રામ કબીર, શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ માં કબીર વિઝડમ સેશનમાં આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું. આજે જેમ કે પ્રથમ આપણે બહુ સુંદર ગીત સાંભળ્યું, ગુરુ અને ગુરુનું મહત્વ, અને એ ગુરુને આપણે શું કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ, બહુ સુંદર ભજનમાં અને મિનિંગ પણ એટલો જ સુંદર છે. તો એ ગુરુ જેને આપણે ગણીએ છીએ આપણા સદગુરુ કબીરજી, તો એ સદગુરુ કબીરજી
નો માર્ગ આપણે બધા જાણીએ છીએ, એમના જ્ઞાનની આપણાને અભ્યાસ છે. હવે એ કબીરજીનું આપણે ઘણીવાર ચર્ચા વિચારણા કરીએ છીએ કે ક્યાંથી આવ્યા હતા, એમનું જન્મ સ્થળ શું હતું, એમનું પ્રાગટ્ય કેવી રીતે થયું, એમનું પ્રાગટ્ય સ્થાન શું હતું. કારણ કે આપણે બે મતો છે કે જન્મ છે કે પ્રાગટ્ય છે. તો એ બધું, અને એ ક્યાં હતું, ક્યાં છે, એનો શું લાભ છે આપણાને, આપણે કેવી રીતે ત્યાં જઈ શકીએ, ત્યાં જઈને આપણાને શું મળે, એ આપણને શા માટે પ્રેરણા આપે છે, આ બધી જ ચર્ચાઓ આજે આપણે અહીં અત્યારે કરીશું. અને એ બધી ચર્ચાઓમાં આપણી સાથે જોડાવા જે જોડાશે એ વારાણસીથી, અત્યારે આપણે ઇમેજિન કરી શકીએ છીએ કે ત્યાં રાતના કેટલા વાગ્યા હશે. તો એટલી મોડી રાત સુધી પણ તમારા અને મારા માટે જે આપણા ગુરુનો સંદેશો અને ગુરુનું એક સાચું માર્ગદર્શન જન્મ વિશેનું, પ્રાગટ્ય વિશેનું, એ લઈને આવે છે. એ ગુરુને હું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરું એ પહેલા આપણે એક લહર તળાવ, જેને આપણે કહીએ છીએ, એનો એમણે જે મને વિડીયો બનાવીને મોકલો છે, બહુ સુંદર નાનો વિડીયો છે, કે જેથી આપણે બધા પણ એક હૃદયની, એ જોઈને આપણે હૃદયની ભાવના થકી આપણે સમજી શકીએ કે આપણે પણ એ જ જગ્યાએ છે. અને એ મહત્વતા સમજાવવા માટે વિડીયો એમણે આપણા માટે, તમારા અને મારા માટે તૈયાર કર્યો છે. તો એમને એના માટે પ્રથમ તો બહુ જ ઘણો ઘણો આભાર. અને એમના જે ગુરુભાઈ કે જેમણે એમનું ઓડિયોનું પણ સંચાલન કર્યું છે, એની સાથે એડિટિંગ કર્યું છે, એ માટે પણ એમને ઘણો આભાર. તો પ્રથમ આપણે વિડીયો જોઈશું, ત્યારબાદ હું ગુરુને બોલાવીશ. તો હું વિડીયો શેર કરું છું.
ફરી પાછા રામ કબીર સર્વ ભક્તજનોને બહુ સુંદર અવાજમાં સુંદર એક બાંસુરીના અવાજ સાથે વિડીયો તૈયાર કર્યો છે. અને કોઈકને પણ જો આ વિડીયો જોઈતો હોય તો આપણે મોકલી શકીશું અમારો કબીર વિઝડમ ટીમનો કોન્ટેક્ટ કરવા. મહેરબાની. હવે આપણે આજના વક્તા અને આપણે એમને હું આવકારું છું. સો રામ કબીર ભગીરથ દાસજી. હા, जी ભગીરથ राम દાસજી અત્યારે આપણી સાથે વારાણસી, ઇન્ડિયા, ભારત મુકામેથી આપણી સાથે જોડાયા છે. ત્યાં રાત્રે 12 વાગી ચૂક્યા છે. અને એ તમારા અને મારા માટે કે જેથી આપણી જે ભગવાન કે આપણા સદગુરુ પ્રત્યેની જે આપણી શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે, એને એક પ્રોત્સાહન આપવા માટે, એને સપોર્ટ કરવા માટે એવો આ અથાગ પ્રયત્ન કરે છે. લાસ્ટ સેશનમાં પણ આવ્યા હતા, ત્યારે પણ મેં એમનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું હતું. એટલે એમનું એકેડેમિકલી પણ એવો બહુ સારી અચીવમેન્ટ કરે છે. અને એવો પોતે પીએચડી કબીરજીના સબ્જેક્ટ પર કરે છે. સો એ બધા સાથે આપણે આજે એમને ક્વેશ્ચન તમને ગુરુજી એક એ છે આજે કે જે લહર તળાવના દર્શન હમણાં અમે કર્યા આપના લાભાર્થે, જે અમને બતાવ્યું આપણી મહેનત ટકી, તો એ કબીરજી લહર તળાવના દર્શન, તો એ દર્શન પ્રથમ તો એ શું છે, લહર તળાવ શું છે, ત્યાં કેવી રીતે પ્રાગટ્ય થયું, આજે એનું મહત્વતા શું છે, અમે એમાંથી શું પ્રાપ્ત કરી શકીએ, ભવિષ્યમાં કદાચ જો અમારે ભારત આવવાનું થાય તો અમે ત્યાં આવીએ અને એ શા કારણસર આવીએ, અમે ત્યાં આવ્યા પછી એનો શું અનુભવ કરીએ, એ બધા વિશે તમે અમને એકદમ વિસ્તૃત ચર્ચા કરવા બદલ તમારો મેં આમંત્રણ આપીએ છીએ. અને શ્રી રામકવિ ભક્ત સમાજ તમારો પ્રથમથી જ આભાર માની લે છે. સો રામકવિ. आप सभी को राम कबीर, श्री राम कबीर भक्त समाज यूएसए के तरफ से ये कबीर विजडम का जो सेशन है उसमें मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो कबीर साहब के प्राकट्य स्थल लहरतारा से संबंधित है, उस पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं एक 4 लाइन की साखी कबीर साहब के उद्भव प्राकट्य को लेकर है उसको मैं बोलूंगा, उसके बाद हम क्रम से अपनी बात को रखेंगे। कबीर साहब के उद्भव प्राकट्य या कहें जन्म, लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई मानते हैं कबीर साहब प्रकट हुए, कोई मानते हैं कबीर साहब का जन्म हुआ, कोई कहते हैं उद्भव हुआ। लेकिन कबीर साहब हमारे बीच में थे, उन्होंने ज्ञान दिया, हमें मार्ग बताया, ये तो सत्य है, इसमें कोई हमारे मन में डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। पीछे क्या है वो अलग विषय है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लहर तारा के विषय में। कबीर साहब के प्राकट्य के विषय में एक साखी है जिसमें कहा जाता है 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाट ठए, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय, घन गरजे दामिनी दम के, बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर ताल में कमल खिले, तहां कबीर भानु प्रकट हुए। किसी महापुरुष ने कबीर साहब के प्राकट्य को लेकर ये साखी बनाई जिसमें कहते हैं कि 1455 ये संवत है, 1455 संवत बीत गया था और 1456 आ गया। 1456 संवत यानी कि अगर हम सन के देखें, ईयर के रूप में देखें तो होगा वो 1398, 1398 ईस्वी में हम कबीर साहब के प्राकट्य या उद्भव को मानते हैं। और कहाँ पर हुआ था? लहर तारा ताल में हुआ था। लहर तारा तालाब, लहर तारा तालाब पूर्व में, आज तो अगर आप आएंगे लहरतारा तालाब को देखेंगे तो बहुत छोटा रूप हो गया है, लेकिन पहले
कबीर साहब के समय में ये तालाब काफी बड़ा था, करीब करीब 21 एकड़ में, 21 मतलब 21 एकड़ में ये तालाब था। और इस तालाब का नाम लहर तारा क्यों पड़ा? तो कहते हैं कि पुराने समय में लोगों ने बताया हम सबको कि जब गंगा जी बहती थी और उसमें बाढ़ आता था, फ्लड का पानी आता था बारिश के दिनों में, तो उसकी जो लहर है वो लहर तारा तालाब में आता था। इसीलिए लोगों ने लहर तारा, गंगा की लहर से बनने वाली एक झील को उन्होंने लहर तारा नाम दिया था। लेकिन अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो गंगा की धारा काफी दूर हो गई है, और शहर में अतिक्रमण होने के कारण गंगा से और उस तालाब से काफी दूरी हो गई, और लोगों ने बीच में घर बना लिए, सड़कें बन गई है। तो तालाब अभी है, लेकिन गंगा की लहर अब नहीं आती। पूर्व में जो नाम था, पहले लहर तारा, गंगा के लहर के कारण उसका नाम पड़ा था लहर तारा तालाब। कबीर साहब के प्राकट्य होने से वो जगह का आज प्रसिद्धि बढ़ गई है, और उसको लहर तारा तालाब कबीर साहब के नाम का पर्याय हो गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति लहर ताला कहता है तो सीधे सीधे वो कबीर साहब को बताता है, वहां कबीर साहब का ही महत्व है। ये जो लहर तारा तालाब है, पहले मंडुआ डी में पड़ता था। मंडुआ डी एक जगह है जहां पर एक मांडुर ऋषि रहते थे, उनका वो क्षेत्र हुआ करता था। तो आज लेकिन लहरतारा नाम ही मुख्य हो गया है, मंडुआ डी थोड़ा थोड़ा दब गया है। तो लहरतारा तालाब में कबीर साहब प्रकट हुए, और नीरू नीमा ने उनको वहीं से प्राप्त किया था। नीरू नीमा जो कबीर साहब के पालन पोषण करने वाले माता पिता हैं, उन्होंने कबीर साहब को लहरतारा तालाब से पाया। इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। कहते हैं कि नीमा का गौना कराकर नीरू उस रास्ते से लौट रहे थे, तो नीमा को जब प्यास लगी तो उसने कहा कि थोड़ा मैं पानी पीना चाहती हूँ। और जैसे वो तालाब के पास गई तो वहां पर उन्होंने हमारे सदगुरु कबीर साहब को बाल रूप में देखा वहां पर, और वो विस्मित हो गई। उसके मन में बड़ी प्रेम की धारा बही, और उसने उस बालक को अपने सीने से लगा लिया। और अभी जो नई नई ब्याह होकर आई स्त्री है, उसने कहा कि हम अपने इस बालक को घर ले जाएंगे, और वो घर लेकर आ भी गए। वहां पर एक जगह और भी है, उस जगह पर बैठकर स्वामी रामानंद के जो शिष्य थे, अष्टानंद जी, उन्होंने भी उस बालक को देखा, और देखकर वो विस्मोहित हो गए थे, और वहीं पर वो ध्यान मग्न हो गए थे। उन्होंने बालक को उठाया नहीं, लेकिन वो क्या है, ध्यान में मग्न होकर उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर ली और उस रूप को निहारते रह गए थे। अभी वर्तमान में जब आप आएंगे वहां पर तो देखेंगे, जहां पर अष्टानंद जी बैठकर ध्यान लगाते थे, वहां पर एक राम जानकी मंदिर बना हुआ है। राम जानकी मंदिर मतलब जो स्वामी अष्टानंद जी थे वो स्वामी रामानंद के शिष्य थे, और स्वामी रामानंद जी वैष्णव परंपरा में रामानंदी संप्रदाय के गुरु थे। रामानंदी संप्रदाय में राम जी जानकी जी उनके मुख्य पूज्य प्रभु हैं, भगवान हैं, उनके आदि गुरु हैं। तो उनकी मूर्ति स्थापित करते हैं। तो आज भी वर्तमान में लहर तारा में तालाब के किनारे एक राम जानकी मंदिर है, वहां रामानंदी साधुओं का संप्रदाय चलता है। जो लहर तारा है, तालाब है, पहले काफी विस्तृत हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में उसका जो स्वरूप है अलग हो गया है। बिरदेव सिंह बघेल जो कबीर साहब के शिष्य थे और काशी के राजा थे, उन्होंने कबीर साहब के उस जगह पर जहां कबीर साहब पाए गए थे, तालाब के किनारे एक प्राचीन स्मारक बनवाया था। और वो जो स्मारक है आज भी एक छोटे रूप में है। अभी आपने जिस वीडियो में
एक लाल मंदिर और सफेद ऊपर आपने देखा, तो वो जो लाल मंदिर के अंदर जो पुरानी हमारी धरोहर है उसको उसी रूप में सुरक्षित करके रखा गया है। तो बिरदेव सिंह बघेल ने उस मंदिर को बनवाया था और आज भी उसको उसी रूप में रखा गया है। उसके बाहर एक नया निर्माण किया गया है, लेकिन उस मंदिर से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। दूसरी तरफ जब आप आएंगे लहर तारा में, तो वहां पर एक और भी नया मंदिर निर्माण हो रहा है। जो पहले वीडियो में आपने देखा एक बड़ी सी मंदिर है तालाब के पास, तो उस तालाब के पास एक नया मंदिर निर्माण हो रहा है, जिसमें खरसिया गद्दी आप लोग जानते होंगे। भारत में कबीर साहब की परंपरा की अलग अलग गद्दियां चलती हैं। कबीर साहब के बाद बहुत से अलग अलग गद्दियां स्थापित हो गई। उसमें खरसिया एक गद्दी है जिसके आचार्य थे उदित मुनि नाम साहब। उन्होंने 1967, मतलब 1967 में एक मंदिर बनाने का काम शुरू किया, और वो अभी बन ही रहा है। धीरे धीरे काम बढ़ता जा रहा है, वो अपनी पूर्णता की ओर है। और वहाँ की जो देख रेख करते हैं अभी हुजूर अर्धनाम साहब जी करते हैं, वहाँ के आचार्य हैं। जो पुराना मंदिर है कबीर साहब का, प्राचीन जो बहुत पुराना है, वहाँ की देखरेख अभी महंत गोविंद दास जी करते हैं। तो अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो दो मंदिर वहां पर हैं, एक पुराना है और एक नया है। और पुराने की देखरेख, नए की देखरेख अच्छी तरह से हो रही है। कुछ दिन पहले, 4 साल पहले अगर आप उस जगह पर आते तो आपको थोड़ी निराशा होती, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत विकसित नहीं था। लेकिन अभी वर्तमान में जो पुराना कबीर प्राचीन मंदिर है, उसका बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। आपने देखा उस वीडियो में कि कैसे वो निरंतर उस पर काम हो रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, एक बढ़िया रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो लहरतारा तालाब का दो पार्ट भी हो गया है। एक पार्ट में जिसमें देखा आपने पानी बहुत सारा है, ठीक ठाक पानी दिख रहा है। और वीडियो के अंत में आपने देखा एक दूसरा तरफ जिसमें घास लगे हैं, पेड़ पौधे हैं। तो लोग लगे हुए हैं, सरकार का भी सहयोग है कि हम उस जगह को कबीर साहब, क्योंकि काशी और कबीर साहब दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। कोई व्यक्ति जब काशी कहता है तो कबीर साहब का नाम स्वयं ही आ जाता है कि कबीर साहब और काशी। तो सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है कि कैसे हम कबीर साहब की धरोहर को बचाएं, और उस पर काम हो रहा है। तो धीरे धीरे वो काम बढ़ता जा रहा है। और लोगों ने जो अतिक्रमण किया हुआ है, लोगों ने अपने घर बना लिए, तो सरकार उनको नोटिस भी दे रही है कि आप उसको धीरे धीरे खाली करें, क्योंकि ये हमारे महापुरुष का जगह है जहां पर उन्होंने प्रकट हुए, जहां पर वो पाए गए थे। तो उस स्मारक को सहेज कर रखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि जो लहरतारा है उसका महत्व हमारे लिए क्या है। हमारे लिए इसलिए है कि हमारे जो सदगुरु हैं, हमारे जो पंथ के आदि आचार्य हैं सदगुरु कबीर साहब, वो वहां पर प्रकट हुए थे, वही तालाब में पाए गए थे। तो वो जो तालाब है, वो जगह है हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि हमारे सदगुरु ने वहां पर प्राकट्य लिया, प्राकट हुए, और वहीं पर वो पाए गए थे। हम जब उस जगह पर जाते हैं, मैं अपनी अनुभव कहता हूं कि मैं जब वहां जाता हूं लहर तारा में, तो ऐसा लगता है कि जरूर ये जगह कोई विशेष होगा जिसको हमारे सदगुरु ने चयन किया था, गुरु ने चुना था अपने प्राकट्य के लिए। और उसकी जो एक ऊर्जा है, जैसे हमारे इस सेशन में जुड़े हुए राजभक्त जी ने कहा भी कि हम क्यों आए किसी जगह पर, क्यों जाएं उस जगह पर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, हम इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन इस विषय में मेरा मानना है कि जब हम किसी जगह पर जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, तो ये कुछ उसी तरह है जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो देखे खाने वाली, अगर कोई खाने का वीडियो है, कुछ खाने वाली वीडियो है, उस वीडियो को देखकर मेरी भूख नहीं मिटती, उसका टेस्ट भी कैसा है वो पता नहीं चलता है। केवल हम एक रूप रंग देखते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल टेस्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको तो बिना चखे हम जान नहीं सकते।
उसके लिए हमें उसका टेस्ट लेना पड़ेगा। तो जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो उस जगह की महत्व, उसकी जो हवा है, उस मिट्टी की सुगंध है, उसकी जो ऊर्जा है, उसको हम महसूस कर पाते हैं। आप हमारी परंपरा में, हमारी संत परंपरा में, भारत की परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह पर कोई महापुरुष आते हैं, वो अपना जीवन बिताते हैं या जन्म लेते हैं, उस जगह की जो ऊर्जा है, उस जगह की जो वातावरण है, नेचर है, वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। तो जब आप वहां जाएंगे तो उस ऊर्जा को, उस महत्व को, उस एटमॉस्फेयर को आप अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि किसी चीज के बारे में केवल कहना, देखना, सुनना ही नहीं है, वहां पर स्वयं उपस्थित होकर पूरी पूरी चीजों को हम अनुभव कर पाए, तभी उसकी सार्थकता है, तभी वो समझ में आएगा। हम जब भी लहरतारा जाते हैं तो लहरतारा में, प्राचीन मठ में, नए वाले में भी जाते हैं, तो दोनों जगह ऐसा लगता है कि हम बैठे यहाँ पर, बैठकर थोड़ा देर महसूस करें। और जब ऐसा हम करने की कोशिश करते हैं, 2 मिनट हम ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं, तो हमारा समय कैसे 20 मिनट बीत गया हमें पता नहीं चलता। क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है, जो शांति है उस जगह पे, शहर में होते हुए भी एक अलग तरह की वहां पर शांति है। और मैं तो इतना कहूंगा कि वहाँ हमारे सदगुरु कबीर साहब की जो धारा है, उसका एक प्रवाह वहां पर है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई है। तो वो जो लहरतारा की जो लहर है, उसकी जो सुगंध है, उस तालाब के पानी का जो भी है, भले वो थोड़ा सा भी गंदा हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन जो भी है वो हम महसूस करते, तो ऐसा लगता है कि हमारे सदगुरु यहाँ पर आए थे, और उसको हम महसूस करें कि वो कैसा वातावरण रहा होगा। तो मैं जब जाता हूँ वहां पर, उसकी सुगंध को महसूस करता हूँ। तो जब भी आप आएंगे वहां पर, जब आप सब आएंगे, और आप सबको वहां आना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे सदगुरु के, गुरु के ओरिजिन को, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, आप लहरतारा को नकार नहीं सकते, क्योंकि वही शुरुआत है। कबीर साहब वहीं से अपनी प्रकट हुए, और फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ते 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 मगहर में जाकर अपना निर्वाण लिए। लेकिन लहरतारा और मगहर के बीच का उनका जो जीवन है, उसमें लहरतारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर साहब ने अपने जीवन में करीब करीब 3 बार यात्राएं की थी। उन यात्राओं में वो पूरी दुनिया में घूमे थे, बहुत से जगहों पर गए थे, जिसमें कबीरवट भी एक आता है, भरूच जिले में गुजरात के पड़ता है। ऐसे अनेक जगह हैं जहां पर कबीर साहब गए थे। उन सब का अपना महत्व है। लेकिन कबीर साहब के जीवन से संबंधित 3 स्थान ऐसे हैं जिसका हमें दर्शन करना तो चाहिए ही जीवन में। जैसे अन्य मत पंथ धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर के, आराध्य के, गुरुओं के जगह की यात्रा करते हैं, वैसे ही हमारे जो कबीर साहब को मानने वाले हैं, उनको 3 जगह की यात्रा तो जरूर करनी चाहिए, जिसमें पहला है लहरतारा, दूसरा कबीर साहब की कर्म स्थली, साधना स्थली कबीर चौरा जहां वो रहते थे, और तीसरा कबीर साहब की निर्वाण स्थली, जहां उन्होंने अपना अंतिम समय में निर्वाण प्राप्त किया। तो जब ये 3 महत्वपूर्ण जगहों की हमें यात्रा करनी चाहिए, और आप अगर लहरतारा आते हैं तो जब आप भारत आए, काशी भी उसमें शामिल कीजिए। काशी को अब हम वाराणसी कहते हैं, वाराणसी को अपनी यात्रा में शामिल कीजिए। और काशी अगर आप आकर लहरतारा आते हैं तो वाराणसी जो एयरपोर्ट है, वहां से करीब करीब 19 किलोमीटर दूर है। तारा 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, और रेलवे स्टेशन से मतलब 1 किलोमीटर दूर है। तो ये बहुत कम डिस्टेंस है, जो उसकी कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे जगह पर स्थित है। तो आप लहर तारा में किसी भी अपनी कनेक्टिविटी से आ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि वहां पर आप रुकना चाहेंगे तो कुछ व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लेकिन उस स्तर की व्यवस्थाएं नहीं है अभी। धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो पुराना जगह है, और
उसको उस तरह से अभी तक लोग नहीं कर पाए, लेकिन अब वो बहुत अच्छा बन जाएगा भविष्य में, हम ऐसा कहते हैं। तो जब आप लहरतारा में आइए और वहां पर बैठिए, मैं यही कहूंगा, बैठकर जो हम अनुभव कर पाएंगे, जो समझ पाएंगे, वो केवल कहने से या देखने से नहीं होगा, वो केवल एक इंफॉर्मेशन होगा। जैसे कोई ये कह दे कि भाई रसगुल्ला मीठा होता है, या हमने रसगुल्ले को देख लिया, तो उसके टेस्ट का जब हम पता नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ। अ, जितने भी संत हैं, जैसे कबीर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब का जन्म यहाँ हुआ था कि नहीं, प्राकट्य हुआ था कि नहीं। तो कबीर साहब ने कहा है, काशी में हम प्रगट भय, रामानंद चेताए। कबीर साहब ने साफ कह दिया कि काशी में हम प्रगट भय। कबीर साहब खुद कहते हैं, काशी में मैं प्रकट हुआ और रामानंद ने मुझे चेताया। चेताया मतलब ज्ञान दिया। उन्होंने अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वामी रामानंद जी को चुना। तो काशी में स्वामी रामानंद जी का भी आश्रम है, मठ है। कबीर साहब ने अपनी दो साखियों में रामानंद जी का जिक्र किया है। तो रामानंद जी कबीर साहब के पथ प्रदर्शक हैं, गुरु हैं। और उनके जो प्रथम शिष्य अष्टानंद जी हैं, उन्होंने कबीर साहब को पहले देखा। और उसकी बहुत लंबी कहानी है कि कैसे उन्होंने अपना गुरु बनाया, क्या, ये सब बहुत लंबी, हम लोग और भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो लहरतारा है, वो कबीर साहब का प्राकट्य स्थल है, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं। बहुत से विद्वानों ने अलग अलग तरह के मत कहे, लेकिन हम सब अभी वर्तमान में लहरतारा को ही कबीर साहब का मुख्य प्राकट स्थल मानते हैं, कबीर साहब के उद्भव स्थली के रूप में मानते हैं। और लहरतारा का जो जल है, तालाब है, उसको भी प्यूरिफाई करने के प्रयास चल रहे हैं। क्योंकि थोड़ा दिन पहले, कुछ दिन पहले, लहरतारा तालाब में गंदा पानी भी आता था, तो उसको अच्छे से बनाकर, क्योंकि हमारे जो दुनिया में कबीर साहब को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके लिए लहरतारा तालाब जैसे गंगा है, वैसे ही है। अन्य लोगों के लिए गंगा है, तो हमारे लिए जो हमारा लहरतारा तालाब है, उसका जल गंगा का जल है। क्योंकि वही हमारे सदगुरु कबीर साहब प्राकट्य हुए थे। तो जहां हमारे सदगुरु का शरीर उतरा, उनके चरण पड़े हैं, वो जगह हमारे लिए पवित्र है, वो जगह हमारे लिए पूज्य है, हमारे लिए तीर्थ है। और उस तीर्थ का हमें दर्शन करना चाहिए। अगर हम उस तीर्थ पर आते हैं, उस जगह पर आते हैं, तो आपको खुद वो, उस जगह की जो ऊर्जा है, वो आपको पता चलेगा। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि जब भी आप आते हैं यहाँ पर भारत में, तो आप लहरतारा आइए, लहरतारा में आकर बैठिए, समय बिताइए। और कबीर साहब जिस समय आए, वो जो समय था 1398 का, वो कितना कठिन समय रहा होगा। और वो जो मौसम था, जेठ का महीना, हम आज भी कबीर जयंती मनाते हैं, तो जेठ पूर्णिमा को मनाते हैं। और लहरतारा में कबीर साहब की जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा में मनाई जाती है, जेठ पूर्णिमा मनाई जाती है। उस जयंती में देश भर के, विदेश से भी, देश भर के विदेश से भी बहुत से जो कबीर भक्त हैं, कबीर साहब के अनुयायी हैं, वो बिना निमंत्रण के चले आते हैं। उनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी आस्था के साथ वहां चले आते हैं। और 3 दिन तक वहां बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें सब शामिल होते हैं। और एक बात बता दूं, कबीर साहब की जो साखी शबद रमेनी है, उसको भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से गाया जाता है। तो जो अलग अलग तरीके के गायन करने वाले लोग हैं, कबीर साहब को जो गाते हैं, वो भी वहां बिना निमंत्रण के चले आते हैं, बिना किसी शुल्क के वहां चले आते हैं, और कबीर साहब को अपनी भजनों के माध्यम से कबीर साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो आप देखेंगे कि वहां पर अलग अलग राज्यों के गायक आए हैं और उस समय की मांग करते हैं कि हमें कबीर साहब का भजन सुनाने का अवसर दीजिए।
तो जब ये ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर साहब की जयंती लहरतारा में मनाई जाती है, तो ऐसा लगता है कि सदगुरु का जो वाणी है वहां पर उतर आया है। देखिए, जब कोई जैसे कबीर साहब अभी सशरीर हमारे बीच नहीं है, एक लंबा समय बीत गया, करीब करीब 627 साल कबीर साहब को हो गए उनका प्राकट्य हुए, लेकिन कबीर साहब की वाणी आज हमारे पास है। तो जब हम अपने सदगुरु की वाणी को गायन करते हैं, पाठ करते हैं, कहते हैं, तो मैं तो ऐसा अनुभव करता हूं कि हमारे जो सदगुरु कबीर साहब हैं वही शब्द रूप में आज प्रकट हो गए हैं। तो एक बहुत ही दिव्य माहौल वहां पर बनता है जब अलग अलग तरह के लोग आते हैं, वहां भजन सत्संग का माहौल होता है, तो ऐसा लगता है कि कबीर साहब स्वयं फिर अपने शब्दों के माध्यम से वहां उपस्थित हैं। तो ये जो माहौल है, जो समय स्थिति होता है, जेठ का महीना, यहाँ भारत में बहुत गर्मी होती, गर्मी भी 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकती है, 46 47 तक हो सकती है। उसमें हजारों भक्त आते हैं, बिना किसी सुविधा के आते हैं, वहां बैठते हैं और कबीर साहब का सत्संग सुनते हैं, उनका भजन सुनते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए। तो ये कबीर साहब के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है, बिना किसी सुविधा के भी वो वहां आते हैं। तो आप सब भी जब आप आएंगे वहां पर बैठेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो जो अनुभव होगा उसको शब्दों से मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं जो अनुभव करता हूँ, आ, बस अनुभव करता हूँ वहां पर, और बहुत अच्छा वहां अनुभव है। आप जब आएंगे तो कबीर साहब की ऊर्जा को वहां अभी भी जीवित पाएंगे, कहने की बात नहीं है। आप वहां पर आकर खुद महसूस करेंगे तो कहेंगे कि अरे वाह, ये तो कबीर साहब की ऊर्जा से ऊर्जित क्षेत्र है, और हमको यहाँ पर करीब करीब ज्यादा में आना चाहिए। तो जब आप काशी आएंगे, कबीर साहब का लहर तारा और कबीर साहब की कर्मस्थली कबीर चौरा मठ दोनों है। तो लहर तारा भी आप देख सकते हैं, कबीर साहब की जो कर्मस्थली जहां उन्होंने पूरा जीवन बिताया, कबीर चौरा मठ, वहां भी आप आके समय बिता सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो सदगुरु कबीर साहब की दिव्य धारा है, ज्ञान प्रवाहित है, उस ज्ञान के प्रवाह में आप सब प्रवाहित हो ही रहे हैं। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जगह का कोई मतलब नहीं है, जगह, ऐसा कह सकते हैं कि क्या मतलब कला ज्ञान है। ठीक है, मैं भी मानता हूं कि ज्ञान जरूरी है, लेकिन जगह का महत्व इसलिए कि हमको देखकर ये अनुभूति करनी है कि हमारे सदगुरु कबीर साहब किन किन जगहों पर रहे, क्या उन्होंने किया, और पुराने समय में कैसा था, आज उसका स्वरूप कैसा है। हम वहां आकर अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे, अपनी समझ को बढ़ाएंगे। हम आकर वहां पर अपनी बुद्धि को सही करेंगे। तीर्थ में जाने का मतलब अपने अंदर बदलाव है। अगर हम साहब को हमारा तीर्थ तो रहता रहा है, हमारा तीर्थ कबीर चौरा, हमारा तीर्थ मगहर है जहाँ सदगुरु निर्वाण प्राप्त किए, हमारा तीर्थ कबीर वट है जहाँ पर सदगुरु ने वट को हरा भरा किया। मतलब जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है, वहां जाकर हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। तीर्थों का मतलब यही है। अगर हम तीर्थ में जाकर केवल वैसे के वैसे रह गए तो कोई मतलब नहीं है। और मेरा ये मानना है कि जब हम आएंगे, वहां पर बैठेंगे, कौन जाने कौन हमें वहां मिलते हैं, क्या ज्ञान मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई कहाँ का संत वहां आकर बैठा है, क्या ज्ञान देता है। ऐसा मेरे जीवन में हुआ है कि हम कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई महापुरुष कुछ न कुछ बातें कहते हैं, और वो जीवन में एक हमारे लिए पूंजी बन जाती है। वो हमारे लिए एक धन है, मनी है, जो हमारे जीवन में काम आता है, हमारे हमारी समझ को बढ़ाता है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक तरह की हीलिंग है, जैसे कोई व्यक्ति आया था, उसने क्या कहा कि मैं अपने एक बहुत ही मित्र को लाया हूं, बहुत जीवन में दुखी, मैं इसलिए लाया हूं कि यहाँ बैठेंगे तो पता नहीं क्या उनके जीवन में बदलाव होगा। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जीवन में बदला है, मैंने कुछ मांगा नहीं, कबीर साहब से कुछ कहा भी नहीं, लेकिन मेरे अंदर बदलाव हुआ है। तो हम वहां आकर बैठें, उसको महसूस करें, लहर तारा की सुगंध को अपने अंदर धारण करें और अपने जीवन में बदलाव करें। इसीलिए लहर तारा आना चाहिए।
और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप सब आइए। काशी की जो कनेक्टिविटी है वो सब जगह से है, और धीरे धीरे निरंतर काशी परिवर्तित हो रही है। उसमें हमारा कबीर साहब का प्राकट्य स्थल लहरतारा भी है, और वो बेहतर हो रहा है। आप जब आएंगे और बेहतर हो चुका होगा, आप उसकी ऊर्जा को महसूस करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, और एक बदलाव होगा, मेरा ऐसा विश्वास है, पक्का विश्वास है, क्योंकि मैंने उसको महसूस किया है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपका स्वागत है, आप सभी लोगों का। लहरतारा में आइए, वहां लोग हैं, आपको ज्ञान देंगे, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा, ऐसी मेरी धारणा है, मैं ऐसा मानता हूं। और इतना ही कहकर मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया कबीर साहब के जन्म स्थली, प्राकट स्थली के विषय में कहने के लिए। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। राम तो कबीर। बहुत राम कबीर, बहुत अच्छा आपने आज जो वर्णन किया, और जो जैसे हम खुद वहां पे हैं इसी तरह से थोड़ा हमें लगने लगा है अभी। और आपने जो आमंत्रण भी दिया उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी। मगर अभी कोई किसी को अगर कोई क्वेश्चन है और कंसर्न है तो सिर्फ आप बता सकते हो, प्लीज रेज योर हैंड। उससे पहले मेरा एक प्रश्न ये है आपको कि जैसे आपने बताया कि नीरू और नीमा ने वहां से कबीर जी को लिया, तो वो कितना दूर रहते थे यहाँ से? उसका कुछ पता है हमें, कोई कोई कि वहां पे ही रहते थे कि कहाँ पे? नहीं, नीरू जो नीमा है, कबीर साहब के पालक माता पिता हैं। तो नीरू नीमा का जो घर है लहरतारा से 4 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये जो घटना घटी कैसे, नीमा जिसका मायका लहरतारा के पास ही मंडुआडीह में था, और जो नीरू थे वो नीमा को लेकर आ रहे थे, गौना करा कर आ रहे थे। गौना आप जानते हैं शादी के कुछ दिनों के बाद होता है। पति जाता है, अपनी पत्नी को फिर लेकर आता है कुछ लोगों के साथ। लेकिन वो पालकी में लेके आ रहे थे। तो रास्ते में नीमा को प्यास लगी। तो तालाब है, पुराने समय में तालाब कुआं हुआ करते थे। तो वो तालाब पर पालकी रुकती थी, और निमा पानी पीने के लिए जब जाती है तो उसने सदगुरु को बाल रूप में वहीं पर देखा, कबीर साहब को, और वो उनको लेकर अपने घर, मतलब नए समय में इसका नाम नरहरपुरा था, आज कबीर चौरा हो गया, वहां लेकर आए। तो ये जो डिस्टेंस है कबीर साहब के घर से उनके प्रकट स्थल लहरतारा को, वो आज केवल 4 किलोमीटर का दूरी पर स्थित है। जी राजू भाई, वेलकम। आपको कोई अ, क्वेश्चन? राम कबीर भगीरथ दास जी। अ, जी। आपने बहुत अच्छी तरह से अ, हम सबको महसूस कराया, और जो आपने एग्जाम्पल दिए, जैसे रसगुल्ला का एग्जाम्पल दिया और खाने की चीज का दिया कि भाई हाँ, आप पिक्चर भी देख सकते हैं लेकिन आपकी भूख नहीं मिटेगी, वो बहुत सही आपने हमें सबको सिंपल भाषा में बता दिया। तो फिर अभी क्या है कि ये थोड़ा बताइए, क्योंकि काफी लोग अभी घूमने चलते हैं, क्योंकि काफी लोग अमेरिका से भी आते हैं और विदेश से आते हैं, और जो जाते हैं तो क्या करते हैं कि भाई वो जो फोटो खिंचाते हैं बिल्डिंग के सामने और वगैरह वगैरह करते हैं, और वो वापिस आ जाते हैं। तो लेकिन जब हम ये तीर्थ जैसी, जहाँ सदगुरु थे वहां, तो हमें जैसे हम आते हैं तो कैसे आना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसी हमारी वो जो बोलते हैं ना, हमारी जो अ, अ, ऊर्जा लेने की शक्ति के लिए हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, हमारा प्रेजेंस कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो अलग चीज है। वो जो हम किसी पैलेस देखने जाते हैं, वहां फोटो वोटो खिंचवा के आ जाते हैं, और यहाँ पे वो अलग चीज है। क्योंकि तो ये हमें बताइए कि भाई कोई भी आए तो वो कैसे आए, कैसे वो ओपननेस रखे, और जी। तो उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन करें, तो फिर जो लोग भी आएंगे वो जो अपनी स्टेट ऑफ माइंड है वो अलग सी करके आएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। एक तो होता है टूरिस्ट प्लेस, होता है जहां हम जाते हैं, सब तो ईंटा पत्थर ही है, पानी है, कोई मतलब नहीं, अगर भाव नहीं है जीवन में,
हमारे अंदर भाव नहीं है तो वो पानी ही है, पत्थर है, ईंट है, कोई मतलब नहीं है। तो एक तो टूरिस्ट प्लेस हुआ जहाँ हम जाते हैं, बहुत अच्छा डिजाइन है, हम फोटो खींचते हैं, लेकिन जो कबीर साहब के प्राकट्य स्थल है लहरतारा, वो हमारे लिए तीर्थ है। तीर्थ में जाने का मतलब होता है पहले स्वयं की तैयारी करना, क्योंकि तीर्थ में हम जा रहे हैं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। जीवन में परिवर्तन कैसा है, बदलाव लाने के लिए तो हमारे अंदर पहले भाव आना चाहिए ना। तो भाव जब हम बनाएंगे, भाव क्या होगा कि भाई देखिए, हमारे सदगुरु कबीर साहब वहां पर आए, और वहां पर आए तो वो जो समय कैसा रहा होगा, क्या रहा होगा। हो सकता है आप आए तो कुछ चीजें आपको आपके मन को दुखी कर सकती है। हो सकता है ऐसा माहौल वहां हो जाए, रास्ते में कुछ गंदगी हो, कुछ ऐसी चीजें हो, ऐसी चीजें हो, तो हम जब तीर्थ में जाते हैं तो सारी चीजों को हम अवॉइड कर देते हैं। कोई भी चीजें हमें प्रभावित न करे, बस हम अपने सदगुरु के तीर्थ को देखने जा रहे हैं, और वो हमारे लिए पवित्र है। वो जिस रूप में है, जैसा है, हम उसको स्वीकार करेंगे। उसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब नकारात्मक चीजें न करें, और बस हम स्वीकार करेंगे। और वो हमारे लिए भाव हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हमारे जो सदगुरु हैं उनका तीर्थ है, और बस इसको हमको फील करना है, महसूस करना है। तो उसके लिए हम वहां पर बैठेंगे, चाहे जैसा भी हो। हम बैठकर थोड़ा देर ध्यान लगाएं, आंख बंद करें, और कबीर साहब की कोई वाणी अगर हम याद रखते हैं तो उसको मन में गुनगुनाएं, सुने। तो क्या होगा कि आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तीर्थ हमारे विचारों का परिवर्तन करता है, भावों का परिवर्तन करता है, लेकिन उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये तीर्थ है। तो तीर्थ को हम भाव से ग्रहण करें। तो भाव अगर बदल देते हैं तो चीजें देखिए बदल जाती है। भावना को बदलना होगा भाई। जब सदगुरु वहां आए तो हम तो क्या है, हम तो जा ही सकते हैं। किसी भी, कितनी भी कठिनाई होगी तब भी हम वहां जा सकते हैं, और उसको हम आ, शुद्ध रूप से, मतलब आप कहिए कि ग्रहण करने के लिए जाएंगे। जो कुछ मिलेगा उसको हम ग्रहण करेंगे, उस पर मनन चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, इस भाव से हम आए। धन्यवाद। आपने सही बताया कि टूरिस्ट प्लेस वर्सेस तीर्थ में हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, हमारी प्रेजेंस कैसी होनी चाहिए। हम जो हमारा माइंड कंप्लेन करता है, जैसे जो विदेश से जो लोग आते हैं, तो वो तो आपने कहा कि रास्ते में जो थोड़ी घनी मुश्किलें होती है, लोगों का जो भी वर्तन, ट्रैफिक, गंदगी ऐसी, उस पर ध्यान नहीं दें। आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से, आपका जो पर्पस है वो हमेशा, और आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड और इमोशंस जो है उसको बरकरार बरकरार रखते आप हम तीर्थ में जाएंगे, और वी ओपन अवर हार्ट, वहां जाके शांति से बैठेंगे। वो तभी तो वो मैटर, कहते कि मिलन होगा। ओपन योर हार्ट। करेक्ट। राइट। थैंक यू। धन्यवाद। और आपने एक और चीज बताई कि वहां पे जब भी हम जाएंगे तो वहां पे दो मंदिर है, एक नया है, एक पुराने वाला है। तो वहां पे आरती सत्संग वगैरह भी होता होगा। और दूसरी चीज, अगर हम जी। यहाँ से जाए तो हमें कोई गाइड भी मिल सकता है वहां पे? जरूर। देखिए, वहां पर लहरतारा में दो मंदिर है। एक नया बन रहा है, उसकी देख रेख अलग परंपरा, कबीर साहब की कई परंपरा है, वहाँ अलग परंपरा के लोग करते हैं। और इधर जो लहरतारा का प्राचीन है उसकी देखरेख करते हैं यहाँ के महंत गोविंद दास जी हैं, पुरानी मठ के। और उधर के हजूर अर्धनाम साहब जी हैं। तो आप अगर आते हैं तो जैसे हम हैं, हमसे आप संपर्क करते हैं तो हम वहाँ कह सकते हैं, वो आपको बता देंगे। यहाँ पर गाइड नहीं है, हम आपके साथी हैं। गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ रहने वाले जो साधु संत हैं वो आपके गुरु भाई हैं। क्योंकि हम सबके गुरु कबीर साहब हैं, तो आपके गुरु भाई हैं, और वो आपको भाई के जैसे ही मिलेंगे। तो गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप आएंगे तो वो आपका सत्कार ऐसा करेंगे जैसे आप उनके भाई बंधु हैं। अगर आप आएंगे, संपर्क करेंगे हम लोग से, किसी से भी, तो आप बहुत बेहतर तरीके से वहां पर आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, और आपको लगेगा कि आप अपने घर में आए हैं। मेरा ऐसा मानना है।
बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। अभी दीपक भाई के पास एक क्वेश्चन है, मैं उसको, दीपक भाई अनम्यूट करજો। जी રામકબીર સૌને અને રામકબીર સ્વામીજી, हम आई वांट टू ऐड समथिंग। आई विल स्पीक गुजराती, हिंदी इतना बहुत हाँ, साल नो हो गया, 40 साल हो गया, प्रॉब्लम। छोड़ दिया है। તો આપણે જે ઈશ્વર બાવાજીએ 5 ચોપડી जी આપી છે, जी તેમાંની જે રમેની 50, આપણે ઓપનનેસની વાત કરી જ્યારે જઈએ ત્યારે એ રમેની 50 નું પહેલું હું વાંચી જવાના, પહેલું પદ: કઈ હિત મોહી ભયલ પુયુગ યુગચારી, સમજુત નાહી મોર સુત નારી, બસ આગી લગી બસ ही જરિયો, ભરમ ભૂલી નર ધંધે પર્યા। હવે એમાં કેવું એમ કહેવા માંગે છે કે 4 યુગમાં કબીરજી આવ્યા છે। સતયુગમાં સકૃતિના નામે, ત્રેતા યુગમાં મુનિન્દ્રના નામે, દ્વાપર યુગમાં કરુણામય સ્વામી અને કલયુગમાં કબીર તરીકે આવ્યા અવતર્યા। તો જ્યારે તમે જાઓ તો એટલીસ્ટ હેવ ધેટ ઓપનનેસ ઓલ્સો, no prejudice, no having a conceived mind. So just be open and go there and then observe it and learn from that. And that's all, Ram Kabir. थैंक यू ओके। दीपक भाई। तो इसके बारे में क्या बोल कहना है आपको कि ये 4 युग का जो बारे में जो बात करते हैं? देखिए ऐसा है, आपने रमैनी की बात की ना, कहियत मोहि भैल जुगचारी, समझत नाही मोर सुत नारी, बंस आग लगी बंस ही झरिया, भरम भूली नर धंधे पड़ गया। ये जो सदगुरु या देखिए 4 युग की जो बात कबीर साहब कहते हैं, हमारी अलग अलग परंपराएं हैं। तो हमारी ही परंपरा में जो वंश गद्दी है, पे मानते हैं कि कबीर साहब 4 युग में आए, और बहुत सारे ऐसे साहित्य प्रमाण देते हैं कि 4 युग में कबीर साहब थे। और और भी जो कबीरपंथी परंपरा है वहां मानते हैं, जैसे अगर इस रमैनी की हम बात करें तो कहियत मोहि भैल जुगचारी, तो मैं का मतलब हुआ कि ये पूरी हमारी परंपरा, गुरु परंपरा, हम अभी नहीं है, हमारी परंपरा बहुत पुरानी है ना। आप देखें तो हमारा तार तो बहुत पुराना जुड़ा हुआ है। तो जब से सृष्टि है तब से ज्ञान परंपरा चली आ रही है। तो जो हम कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं वही हमारी परंपरा के पुराने जो गुरु हैं वो भी कहते आए हैं। तो ये आज की बात नहीं जो मैं कह रहा हूं। लोग क्या है, किस में पढ़े हैं, भरम में पढ़े हैं, धंधे में पढ़े हैं। आप जो कह रहे हैं कबीर साहब की 4 युग में आने की बात बहुत से लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान कबीर साहब की बात करते हैं तो एक समय है, दौर है, 1398 टू 1518, 120 साल का जो दौर है जिसमें कबीर साहब थे, उन्होंने ज्ञान दिया। इसको हमको ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि इस युग में जो कबीर हम ज्ञान दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पहले जो 4 युग की बात हम करते हैं वहां कबीर साहब ने क्या कहा, उसकी कोई वाणी हमारे पास नहीं है। कबीर साहब की उस समय की जो साखी शबद रमेनी नहीं है, अभी वर्तमान जो 1398 टू 1518 के कबीर साहब हैं, उनकी साखी शबद रमेनी हमारे पास है। तो हम उनको माने। और कबीर साहब 4 युग की बात करें तो वो ज्ञान की परंपरा की बात कर रहे हैं। मैं इस तरह से इसको देखता हूँ। काका તમારો ક્વેશ્ચન है? राम कबीर सौने भगीरथ भगीरथ दास जी, आपने आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। जी और जो कबीर साहब की बात आज कर रहे हैं, तो मैं वाराणसी काशी आया था। जी तो स्टेशन पे लिखा था कबीर स्टेशन, ऐसा कुछ लिखा था। तो वाराणसी में कबीर ही कबीर ही वाराणसी है, पर्याय है। काशी कबीर ही है। इतनी इतनी उसकी बोलबाला है उधर। बड़ी अच्छी है। आप ये बात कर रहे थे कि तालाब लहरतारा, तो वो तो तीर्थ है। फिर भी वहाँ जब मैं गए तो
मैं तो पहला देखने को गया कबीर चौरा। तो ऐसा तीर्थ मैंने कभी देखा नहीं। अभी भी इतना प्रभावशाली है कि कबीर जी जो कुआं है, कुआं में से एक कमल कमल पानी लेती है, वो सब सब हमने बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरी बात जो जे जे तालाब की बात है, तो आजकल वो कमर्शियल बहुत हो गया है, बहुत बहुत बिल्डिंग। और तो जो अपने तीर्थ की जे भावना है, तीर्थ की जे जरूरियात है, तीर्थ स्थल बनाने के लिए वातावरण की जो जरूरत है, वो हम चूक गए हैं उधर। क्योंकि ये सब कमर्शियल बात में, और जो तालाब है, वो तालाब छोटा बन गया, तो महत्व हमने बिगाड़ा है उधर। जो हमें तीर्थ की जो भावना रखनी है, तीर्थ के जे हमें जे रखना चाहिए कि ये तीर्थ की जो भावना वो नहीं रख सकते। तो जी कबीर साहब के दो बात है ही नहीं, वो थे, है और रहेंगे। उसकी वाणी तो रहने कोई बेट नहीं कर सकती, मगर हमें उसको जीवंत रखना है। तो जीवंत कैसे रखे? तो आपने जो बोला कि तीर्थ है, जैसे कि कबीरवड़ हमारे गुजरात में है, तो कबीरवड़ की जो अभी भी जो कबीर का जो वड़ है, तो हमें अभी भी लगता है कि यहाँ कबीर हाजिर है। तो ऐसी भावना के लिए हमें वातावरण भी जरूरी है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल जरूरी है। कि जो एटमॉस्फेयर हमें ऐसा बनाएंगे, जो पहले था वही रखना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने और लोगों ने ये तालाब की बात जो है ना, उसमें अच्छा नहीं किया। वही मुझे डर लगता है। मैं आ, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ। बहुत अच्छे। नहीं, बहुत हाँ, अच्छा आपका विचार है काका। मगर मुझे जो लगता है वो मैं कह रहा हूँ कि कबीर साहब को हमें जीवंत रखना है, तो कई बाबतों को हमें संभाल के रखना चाहिए। उसके लिए गैदरिंग करो, थोड़ा पैसा भेगा करो। अभी तालाब में बिल्कुल वाटर जो है जो डर्टी है, तो उसको डर्टी नहीं रखना चाहिए। ऐसी बातों हमें रखनी करनी चाहिए। तो हमें लोगों जो है, तो वो ही अभी जरूरियात है। कबीर साहब को आगे रखना है, हमें हृदय में रखना है, तो हमें यही करना पड़ेगा। आप सबको नमस्कार। राम कबीर। जी थैंक यू काका, बहुत सुंदर मैं तुम्हारा विचार। बहुत बहुत सुंदर मैं एक एक बात कहूंगा। जी जी गोविंद भक्त जी जी ने जो भाव रखे, ये यहाँ आए थे, और आप जब आए थे तो लहरतारा की जो स्थिति थी उससे काफी बदलाव हो गया है। लहरतारा के पानी को प्यूरिफाई करने के लिए सरकार ने कुछ उसमें चीजें डाली, कुछ चीज किया, और धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। ये तो तय है कि लोग इतने जागरूक नहीं है कि उनके जगह को और बचा के रखा जाए। जो अतिक्रमण हो चुका है वो तो अलग है, लेकिन जो बचा है जितना ही है उसको सुरक्षित रखने का प्रयास हो रहा है। लोग लगे हुए हैं, अपनी तरफ से प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं कि वो उस रूप में आ जाए। और जब आप आए अगली बार, तो आपको एक अच्छा तालाब जैसा रहा होगा कबीर साहब के समय में वैसा दिखे। यही प्रयास चल रहा है, और कबीर साहब हमारे मार्गदर्शक हैं, वो जब चाहेंगे होगा। और जिन्होंने जो किया वो अलग विषय। कबीर साहब कहते, कबीर तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों हो तू दास। यही अपने विचार का परिवर्तन है। दुनिया बदलने के बजाय अपने को बदलें तो बेहतर सब कुछ हो जाएगा। થેન્ક યુ, बहुत अच्छा। તો અભી પાછું હું બધાને યાદ કરાવી દઉં કે અત્યારે ભગીરથ દાસજી આપણી સાથે
ભારતથી જોડાયા છે, વારાણસી મુકામેથી, અને ત્યાં રાત્રે 1 વાગી ગયો છે. સો આપણાને ખબર છે કે આપણા માટે જે તમારા અને મારા માટે જે આટલા પ્રયાસો કરીને વિડીયો બનાવે છે, આપણાને આજે જે લહર તળાવ વિશે જે ખબર પડી એ બહુ સુંદર મજાનું કોન્સેપ્ટ આપણો ક્લિયર થયું. તો એ માટે તમારો ઘણો ઘણો આભાર. શ્રી રામકબીર ભક્ત સમાજ તમારો આભાર માને છે. અને એમની સાથે ચર્ચા વિચારણા દરમિયાન મારે એક બહુ સુંદર વાત થઈ છે, અને એમણે એમના બાજુથી મને પ્રોમિસ કર્યું છે. તો એ હું આજે જણાવવામાં મને બહુ આનંદ થાય છે કે એઓ એવું કહે છે કે જ્યારે લહર તળાવથી કબીરજીનો જે પ્રવાસ ચાલુ થયો અને મગરમાં જઈને જ્યારે અંત આવે છે, તો એ આખા પ્રવાસનો હું આવી રીતે જ વિડીયો બનાવીશ અને તમારી જોડે પ્રેઝન્ટ કરીશ. અને એ એમણે પ્રોમિસ આપ્યું છે. સો અમે માનીએ છીએ કે તમે એ પ્રોમિસ અમને, અમે જેમ જેમ તમારી પાસે તૈયાર થાય એમ અમને કહેજો, તો આપણે આ રીતે કબીરના સેશન કરીશું. અને થોડા તમારો સમય આપવા બદલ અગેન ઘણો ઘણો આભાર. હવે આપણે, જી મેં કહ્યું તમે આજે તમારા મુખ્યથી અમે અંતિમ જે શાંતિ પ્રાર્થના અમે કરીએ છીએ અત્યારે આ સેશનના પૂર્ણમાં, એ તમે કરો, અને પછી હવે આપણે સેશનનું આજે પૂર્ણાહુતિ કરીશું. રામ કબીર, શ્રી રામ કબીર ભક્ત समाज तरफ बता तुम्हारे भगीरथ दास जी, आप वो जो अंतिम प्रार्थना हम करते हैं ना, तो आप जी हमारे लिए अंतिम प्रार्थना कर दीजिए. शांति मैं करूं? जी. तो हम जो प्रार्थना करते हैं कबीर साहब की साखी से, सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक परसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया शब अंग। कबीर हम जाए थे आगे गुरु लिया हाथ, गुरु की ज्ञान जो साथ है शिष्य चले हैं साथ। साहिब बंदगी। राम कबीर. थैंक यू. राम कबीर.